हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फिरोज़ मिर्ज़ा फ्रॉम द न्यू इंडियन एक्सप्रेस चेन्नई। और आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। और ये मेहमान आज हमारे साथ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि कुछ ही दिनों में इंडिया 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला है। और जब भी वर्ल्ड कप की बात होती है तो सबसे पहले सारे हिंदुस्तानियों के जहन में एक बात आती है, 1983 वर्ल्ड कप जो इंडिया जीता था डिस्पाइट बीइंग अंडरडॉग्स। और वो स्टोरी जो है वो आज भी लोगों के दिमाग में तरोताज़ा है। और दे नो द स्ट्रगल, द स्टेटस, द एवरीथिंग, द प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग विच द टीम अंडरवेंट बिफोर लिफ्टिंग द टाइटल फर्स्ट एवर फॉर द कंट्री। लेकिन जब भी उस टीम की बात होती है तो उस टीम के जो मैनेजर थे उनकी बात होती है। और आज वही आइकॉनिक टीम मैनेजर मिस्टर पी आर मान सिंह हमारे साथ हैं। मान सिंह सर, वेलकम टू आवर वीडियो हियर। It's a pleasure to be here, and I greatly appreciate that the 83 World Cup is always in the news whenever there's another World Cup anywhere else. It was a great credit for the team itself because if you go through the performance, uh, you cannot say that one particular person can stand out for winning. ट्रू। Right. People talk about Kapil's 175 against Zimbabwe at Tonbridge Wells. But again, when we talk about that epic innings of Kapil Dev, we tend to forget the contribution of a few others. Like when you have an event, there is a hero, but there are many people who work behind the scenes. ट्रू सर। And in this particular case, I would mention the contribution of Roger Beni, Madan Lal, and finally Kirmani, who stood on the other end while Kapil was playing all those shots. So the credit goes to all like that, and the victory was great. And the best thing I feel was, since we were not given any chance of even qualifying for semi-finals, there was no pressure on the team as such, and every boy in the team was relaxed, happy. It was a good family, ट्रू। and I, for one, can compare the 83 World Cup with the 87 World Cup. I was manager of the 87 World Cup as well. ओह। While playing in India, the pressure is so much on a player. Wherever you go, there are somebody to speak. You do like this, you do like that, why did you do that? So that pressure was not there in 83. और एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी बिकॉज वी वन इन 83। तो पब्लिक वांटेड द टीम टू रिटेन द टाइटल। और होम वर्ल्ड कप है, पहली बार हो रहा है, वी आर को होस्टिंग इट। तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो गई थी, वो प्रेशर बढ़ा दिया होगा। हाँ, तो फिर क्योंकि 87 में दे वर ऑलरेडी होल्डर्स, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई विल रिटेन, बट देन अगेन we lost in the semi-finals. And then 83 World Cup really spread out the game in the country. And to that, a lot of credit should go to All India Radio and Doordarshan for broadcasting the 83 World Cup semi-finals and finals in Hindi. You see, the basic language in the country, or majority, people speak Hindi, and that's where, and these relays were made in smaller towns, smaller villages, and that's how the game picked up what it is today. ट्रू ट्रू सर। और जो हिंदी की रीच होती है और गांव में, रूरल एरियाज़ में ले जाना, वो चीज़ ने कर दी। और जो क्रिकेट का एक स्टेटस था वो बहुत बढ़ गया था आफ्टर दैट। बिल्कुल बड़ा। तो सर, जैसे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी कहानियां हैं जो 83 वर्ल्ड कप से जुड़ी हैं। एंड यू बीइंग द मैनेजर ऑफ टीम, अपने आप में वो एक कहानी है। तो आप क्या बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को कि क्या एग्जैक्टली था? बिकॉज देयर वाज समथिंग लाइक देयर वर 2 टूर्स इन द सेम ईयर, द टीम गोइंग टू वेस्ट इंडीज़, द टीम गोइंग टू वर्ल्ड कप। आप दो लोगों के नाम थे, हनुमंत सिंह जी का और आपका नाम। तो कैसे फाइनली डिसाइड हुआ कि यू विल गो विद द टीम फॉर द वर्ल्ड कप एंड ही विल गो फॉर द वेस्ट इंडीज टूर? उन दिनों में ऐसा था कि
जब भी इंडियन टीम बाहर जाती तो उनका मैनेजर जो है बीसीसीआई की जनरल मीटिंग में इलेक्ट हुआ करता था, ओके एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट यूज्ड टू बी यूनानिमस। ओके तो जब इंडियन टीम पाकिस्तान से आई तो उसका परफॉर्मेंस बहुत खराब था। जी। And who was captaining the Indian side when they toured Pakistan? Sunil Gavaskar was the captain, Okay. and that tour was responsible for Sunil to leave his captaincy. Oh. And again, a great batsman like Vishwanath, who failed on that trip, never got a second chance to That's sad, sir. redeem himself. And after that, there were two tours, one full tour of West Indies, and the other was the World Cup 83 in England. So basically, these big wigs of the BCCI, they decided that these two trips will be managed by Harman Singh and myself, and they left it to us to decide who is going to go where. So this time वो इलेक्शन नहीं हुआ क्या किसको जाना चाहिए? नहीं, ये तो पहले एक किस्म से ब्रॉडवे में डिसीजन बता दिया गया था। ओके अनऑफिशियली, Okay. जो कुछ भी है। तो फिर उसका मैंने हरमन को फ़ोन करके पूछा, भाई ऐसी ऐसी चीज़ है, सिंस यू आर ए टेस्ट क्रिकेटर एंड मच मोर एक्सपीरियंस, कि आप कौन से टूर पे जाना चाहेंगे? जी। तो उसने कहा कि भाई मैं वेस्ट इंडीज़ जाऊँगा, तुम तो वेस्ट इंडीज़ गया है हैदराबाद ब्लूज़ के साथ, जी। मैं वेस्ट इंडीज़ जाऊँगा। आप कब गए थे हैदराबाद ब्लूज के साथ? हैदराबाद ब्लूज़ का मैंने अरेंज किया था 1975 में। ओके एक फुल टूर, जी। पटाउडी, जयसिम्हा, आपके और दूसरे टेस्ट क्रिकेटर्स और ट्रिप जी। थे। तो उस जब मैं वेस्ट, तो छोटे ने कहा कि भाई आप तो हो आए हो, अब मैं जाता हूँ। तो फॉर ए मोमेंट आई वाज डिसअपॉइंटेड इन द सेंस कि भाई वेस्ट इंडीज टूर वाज अ बिग टूर, एंड टिल दैट टाइम आई हैड नॉट मैनेज्ड अ इंडियन टीम ऑन अ टेस्ट टूर। ओह पाकिस्तान भी जो भी गया था वो मैं असिस्टेंट मैनेजर गया था जी महाराजा बड़ौदा प्रेसिडेंट थे। जी। और उसके बाद 83 का ये हुआ कि मनमोहन सिंह ने कहा वेस्ट इंडीज, मैं कहा ठीक है भाई मैं एक्सेप्ट। So it felt like an lost opportunity to you at for some moments. I won't say an opportunity, but I wish Oh that way। तो उसके बाद जनरल बॉडी मीटिंग में जो है हरमन सिंह वाज इलेक्टेड यूनानिमस, तो चला गया। okay जब वर्ल्ड कप की बारी आई मैनेजर को इलेक्ट जी। करने की, तो दिल्ली में मीटिंग थी। जी। तो वहाँ पे जो है ऑपोजिशन ग्रुप जो था लेड बाय बिंद्रा, साल्वे एंड अदर्स, उन्होंने पहले ये शुरू किया कि भाई जो इंडियन टीम जो इंग्लैंड जा रही है उनके साथ खाली एक मैनेजर नहीं, एक असिस्टेंट भी होना चाहिए। ओह लेकिन उस टाइम पे जो सेक्रेटरी थे करवानीकर, उन्होंने बताया कि भाई ये नहीं हो सकता, क्योंकि आईसीसी और ईसीबी, दैट इज इंग्लिश क्रिकेट पोस्ट एसोसिएशन जो है। उन्होंने डिसाइड किया है कि भाई टीम सिर्फ 15 लोगों की होगी। ओके अब वो 15 में जो है आप 14 प्लेयर एक मैनेजर रखो, 13 प्लेयर रखो, वॉटएवर। ओके तो उसके ऊपर उनका ये आर्गुमेंट था कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट टूर है, वो है ये, तो अगर 16वां आदमी गया तो उसका खर्चा बोर्ड देगी। ओके तो ये फिर डिसाइड हुआ कि नहीं भाई ये मैटर को जो है वोट करना चाहिए। तो ये मैटर वाज पुट टू वोट, और द मेजॉरिटी सेड नहीं, ओनली वन मैनेजर विल गो। ओके एंड देन आई वाज नॉमिनेटेड बाय वन ग्रुप एंड निरंजन शाह फ्रॉम द अदर ग्रुप, ओह ग्रेट एंड आई वन दैट इलेक्शन बाय 2 votes, ओह and that's how I got elected as manager of the Indian team। तो सब एक किस्मत की बात थी कि सब चीज़ें होती जा रही थी। बस ऐसा है, मेरे को डेस्टिनी पे बहुत बिलीफ है जी कि भाई ऊपर वाला जो है जो भेजता है तो तुम्हारा पूरा हिसाब किताब के साथ भेजता है जी कि भाई आपको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। डिफिकल्टीज हो। ओके तो वो बिलीफ में जब मैंने ये देखा कि भाई वर्ल्ड कप जा रहे, ठीक है, मैं इंग्लैंड तो मैं कई बार गया, मैं मैनचेस्टर में मैंने एजुकेशन भी की अपनी, जी तो इंग्लैंड चले गए। वहाँ पे अब जाने के बाद ये सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में जी मैनेजर को भी कोऑप्ट करते थे। ओके तो कपिल एज कैप्टन
और मैं एज मैनेजर टीम में थे, तो 10-15-14 लोग जितने भी थे वो बिल्कुल आराम से 5-10 मिनट में टीम ख़त्म हो गई और चले गए। तो जब मीटिंग ख़त्म हो गई थी तो कपिल ने मेरे से कहा कि भाई कपिल, मदन लाल, सुनील वॉल्सन और कीर्ति आज़ाद और एक और, तो ये 5 लोग जो है ऑलरेडी इंग्लैंड चले गए हैं काउंटी वहाँ पे- और अपने जो वहाँ उनके पे दूसरे लीग और काउंटी क्रिकेट जी। खेलने के लिए। तो जो बाकी के बचे थे 9 और मैं 10, हम लोग 10 लोग बॉम्बे से निकलना था। उन दिनों तक क्या था कि जब कभी भी इंडियन टीम बाहर जाती तो बीसीसीआई एक फंक्शन करती, ओके, सॉर्ट ऑफ सेंड ऑफ फंक्शन। फेयरवेल डिनर। ओके, तो लेकिन इस टाइम कुछ भी नहीं था, एवरीथिंग वाज ऑन द क्वाइट और एटीट्यूड ऐसा था कि भाई एक इनविटेशन आया है, इसको निभाना है। तो रीजन क्या था भैया? फाइनेंशियल कांस्टेंट वाज द रीजन फॉर नॉट गिविंग सेंड ऑफ, या दूसरे कोई और रीजंस थे जिसके कारण? नहीं, बस इम्पोर्टेंस नहीं थी टोल की। ओके 75 और 79 में कोई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं था ओके जो कि ये बताए कि 83 में कुछ होगा, तो वी शुड सॉर्ट ऑफ कन्वे देयर विशेस। इंग्लैंड पहुँचे, इंग्लैंड पहुँचने के बाद फिर वो बाकी के 5 लोग भी आके मिल गए और मिलने के बाद हमारी जो पहली मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में मैंने पूरे प्लेयरों को ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि भाई मैं जो है ऑफ द फील्ड बॉस माना होता हूँ, लेकिन मैं वैसा एक्ट नहीं करूँगा और मैं भी चाहता हूँ कि भाई मेरे को बड़े भाई की तरह ट्रीट करो, मैं आपको छोटे भाई की तरह ट्रीट करूँगा। दैट मेड अ बिग इम्पैक्ट। और दूसरी चीज़ मेरे को एडवांटेज ये थी कि वो जो भी 14 प्लेयर थे उनको मैं 1-to-1 जानता था। ओके क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ देम यूज्ड टू कम टू हैदराबाद टू प्ले इन मोनोदोलो, a few came for the Dilip Trophy and all that. And since I became joint secretary at a very young age, तो वो एज से ये लोग जब अंडर 19 खेल रहे थे, खेल के आ रहे थे तो जी। उस दिनों में मोनिगोला टूर्नामेंट में वजीर सुल्तान टोबैको कंपनी जो है जी एक ऑल इंडिया अंडर 19 टीम फील्ड करती थी ओके मोनिगोला में जी कैप्टन बाई पटाउटी। ओके तो वो 2-3 साल जो अंडर 19 टीम आती थी हैदराबाद, तो उनके साथ मेरा बिल्कुल 1-to-1 इंटरेक्शन होता था जी। तो वैसे कोई मुश्किल नहीं थी जी। और वो लोग भी मेरे को उतने रिस्पेक्ट देते थे और आधे से ज़्यादा लोग तो मेरे साथ पाकिस्तान में भी थे, वो भी एक एडवांटेज था क्योंकि पाकिस्तान का टोल ये था कि भाई खाली ग्राउंड और होटल जी, और बाकी सब सिक्योरिटी के नाम पे हमको कहीं आना जाना अलाउड नहीं था। तो ओके अब जब होटल में बैठे हैं तो आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये चलता था। तो ये एडवांटेज था मेरे को ये टीम के साथ। और कपिल ने कह दिया था कि भाई फील्ड के ऊपर 110% होना है और उसके बाद कोई कुछ भी करे। तो जब उसने कुछ भी करे तो मैंने कहा कि भाई कुछ ऐसी चीज़ ना करो जो हमारे देश के लिए ना बुरा नाम लिए। तो जी सब एक तरह से फैमिली अफेयर था। और जब वो प्रैक्टिस मैचेस खेलने गए तो ये तो नहीं कहूँगा मैं कि बस सीरियस नहीं थी, लेकिन बस कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मदद नहीं करी थी या कुछ नहीं था। तो 4 मैचेस में से 3 मैचेस हारे और बुरी तरह हारे थे शायद जी, बुरी तरह हारे थे वो। बुरी तरह से क्या वो तो हारना 50 है और 60 के जी मैच में एक श्रीलंका से जीते थे जी और श्रीलंका से हारे माइनर काउंटीज और न्यूजीलैंड, जी ये 3 मैचेस हारे। तो मैचेस वगैरह हारने के बाद टीम मीटिंग में हुआ कि नहीं भाई ये जो हार हुई है इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए ओके। कि भाई कॉन्फिडेंस लूज करेंगे कुछ। अरे वार्म अप मैचेस में हार के बाद क्या मींस मूड था टीम में? और मूड तो ये था कि भाई खुशी तो नहीं थी जी लेकिन इतना गम भी नहीं था कि भाई उसको एक इशू बनाया जाए। ओके वो भी तरह रादर इट वाज टेकन इन द स्ट्राइक। और एक पर्टिकुलर दिन में जो था हमको बेकिंगम पैलेस में जाना था जी क्वीन से मिलने के लिए। जी
तो जब जाना था तो उनके रिप्रेजेंटेटिव आके मेरे को बोली कि भाई जब क्वीन से मिलोगे जी। तो कैसे मिलना। ओके, वो एटिकेट बताया गया आपको कि किस तरह से मिला जाता है। हाँ, तो उसमें ये था कि भाई क्वीन खाली हाथ यूँ रखेगी, फिंगर टिप्स टच करके ओके। वो करके चले जाना। तो वैसे हम वो किया, बेकिंग पैलेस से फिर लॉर्ड्स पे आए, वहाँ पे जो है वो ग्रुप फोटोग्राफ हुई जी जिसमें 8 टीमें बिल्कुल थे। जी और उसके बाद जो है जो स्पॉन्सर्स थे जी प्रूडेंशियल इंश्योरेंस, जी उन्होंने लंच होस्ट किया था। वो लंच के बाद जो है ईसीबी और आईसीसी ने मिलकर एक मीटिंग करी। जी इस मीटिंग में हर एक टीम का कैप्टन, मैनेजर और उन किसी के साथ कोच हो तो कोच, इनके साथ मीटिंग हुई। ये मीटिंग में जो है पूरे प्लेइंग कंडीशंस को एक्सप्लेन किया गया, डिस्कस किया, क्योंकि बहुत सारे तो वो थे जो कि 75 79 में खेल चुके थे, जी तो उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। जी लेकिन एक पर्टिकुलर इशू जो ट्राइब लॉर्ड का जो वेस्ट इंडीज़ के जो कैप्टन थे उन्होंने रेस किया, वो ये था कि भाई इंग्लैंड में जितने भी ग्राउंड्स हैं उनमें फेंसिंग नहीं है। ओ तो अगर फेंसिंग नहीं है और पब्लिक आएगी अंदर लोग होंगे, घुस जाती है तो पब्लिक कैसे अगर। होगा। ओके तो ही वॉज एश्योर कि भाई वो पूरा सिक्योरिटी का इंतज़ाम होगा, उसकी कोई बात नहीं है। बस वहाँ से निकल के हम लोग मैनचेस्टर के लिए निकल गए। लंदन से मैनचेस्टर की ड्राइव कोई 6 या 7 घंटे की थी। जी तो इतने थके हुए थे सारे कि भाई बस में सो गए। बस ड्राइवर भी जो था हमारा बड़ा ही लाजवाब आदमी। किस सेंस में? इन द सेंस ग्लेनफोर्ड था उसका नाम। जी तो वो जो है अपने आप को भी टीम का एक मेंबर समझता था। ओके तो जैसे हुआ कि भाई होटल से ग्राउंड जाना है, तो वो एक दिन पहले बस लेके होटल से ग्राउंड जाएगा, ओके जाके कैलकुलेट करेगा कि उसमें कितना टाइम लगता है, अच्छा और ट्रैफिक का मार्जिन देके मेरे को बोलेगा कि भाई होटल से ग्राउंड जाने में इतना टाइम लगेगा। तो उसके हिसाब से जो है मैं प्लेयरों को बोलता था कि भाई हम लोग होटल में ये टाइम से निकलेंगे ओके ताकि ग्राउंड को टाइम पे पहुंच सकेंगे। तो उसी तरह से मैंने ये जब मैनचेस्टर, क्योंकि मैनचेस्टर जिस दिन जा रहे थे अगले दिन ही मैच खेल रहे थे वेस्ट इंडीज से, कोई रेस्ट डे प्रैक्टिस कुछ भी नहीं, कुछ नहीं था कि भाई मैनचेस्टर के 1 या 1.5 घंटे आने पहुंचने से पहले में जब मुझे बता देना। तो उसने मुझे बताया। जब तक जो है प्लेयर उठ गए थे सब कुछ था, मजाक हो रहा था, और बस के अंदर जो है पैंट्री थी, तो काफ़ी प्लेयर अपनी चाय बना रहे हैं, कॉफ़ी बना रहे हैं या कोक पी रहे हैं, यानी इट वॉज ए वेरी कंजीनियल हैप्पी एटमॉस्फेयर। उस समय मैं कपिल को बोला कि भाई मैं कपिल को हमेशा कप्तान से एड्रेस करता था। और वही वर्ल्ड कप में आपने शुरू किया था कप्तान बोलना। कप्तान जी मैंने कहा कप्तान यार टीम मीटिंग कर लेते हैं, क्योंकि इन द बस इटसेल्फ। बस में ओके क्योंकि जब मैनचेस्टर पहुंचेंगे होटल में जाएंगे, कमरों में जाएंगे, फिर दौड़ दौड़ के जो है होटलों में जाएंगे डिनर करने के लिए, उसके बाद टीम मीटिंग हो या डिनर से पहले टीम मीटिंग हो, नहीं होगा। अब हम लोग कुछ कर नहीं रहे, बेकार ही बैठे हैं मतलब मारते हुए, तो क्यों ना टीम मीटिंग करें। तो उन्हें एग्री करो, तो उसमें जो है टीम मीटिंग हुई, सब कुछ हुआ। तो उसमें कपिल ने और जो इंडिया के प्लेयर्स वेस्ट इंडीज टूर पे थे, उन्होंने ये चीज़ कही कि भाई हम लोग एक बार वेस्ट इंडीज़ में बर्बिस में ये ODI जीते थे। ओके तो एक बार जब जीते हैं तो दूसरी बार क्यों नहीं जीत सकते। तो उस पर यह हुआ कि भाई बिल्कुल रिलैक्स होके 110% फील्ड पे देंगे। उस स्पिरिट से वो वेस्ट इंडीज का मैच खेला गया। हालांकि वो एक ही मैच था पूरे टूर्नामेंट में जो दूसरे दिन गया, बारिश की वजह से पहले दिन ख़त्म नहीं हुआ, तो दूसरे दिन गया जी। तो दूसरे दिन हम लोग फील्डिंग कर रहे थे, मैच जीत लिए। और इत्तेफाकन ये था कि भाई उसी दिनों में जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया से खेल रही थी, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया। तो ये हुआ कि भाई ग्रुप के जो 2 टॉप टीम होने वाले थे वो हार गए, एक मैच हार चुके जी।
और हम दोनों जिम्बाब्वे और इंडिया जिनसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। उनके लिए बहुत बड़ा जी। मोरल बूस्टर था। तो मेरा सेकंड मैच जिम्बाब्वे से था, जिम्बाब्वे से आराम से जीते, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस उसके बाद जो एक किस्म का टीम में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा था और एक रिदम भी मिल गया कुछ था कर हमें। सकते हैं, जी। लेकिन वो करने के लिए हमको कुछ ज़्यादा करना पड़ा। तो थर्ड मैच जो था वेस्ट इंडीज से था। फिर से वेस्ट इंडीज से जो मैच हो रहा था उसमें विव रिचर्ड ने 100 बनाए जी। और सब कुछ हुआ। और हमारी तरफ से वेंगसरकर और मोहिंदर अमरनाथ बहुत बेहतरीन बैटिंग कर रहे थे। जी। और वो मैच में ऐसा था कि भाई वेस्ट इंडीज़ के जो 4 फास्ट बॉलर्स थे जी। वो बाउंसर्स ज़्यादा फेंक रहे थे बनस्पे गुड लेंथ के या जो कुछ भी है। तो एक ज़रा शॉर्ट बॉल दिलीप की चोटी पे लग गई और उसको रिटायर्ड हर्ट होना था। उसकी वजह से वो उनकी जो पार्टनरशिप थी वो ब्रेक हो गई। और मेरे को पूरा यकीन है कि अगर वो पार्टनरशिप ब्रेक नहीं होती तो हम वो मैच भी जीतते थे। और अलबत्ता उससे पहले हम वेस्ट इंडीज़ से खेलने से पहले ऑस्ट्रेलिया से मैच खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के मैच में खेलने में ये हुआ कि भाई ज़रा फीलिंग ठीक से नहीं हुई। उन्होंने बहुत बड़ा स्कोर कर दिया, लेकिन जब हम बैटिंग कर रहे थे हर 15 मिनट आधे घंटे के लिए में बारिश हो रही, वो कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही थी। और तो प्लेयर्स अंदर आते थे फिर जाते थे, तो जब वापस जाते थे हमारे विकेट्स गिरते थे। ओके। तो इसलिए हम लोग मैच हारे। लेकिन क्रेडिट है ऑस्ट्रेलिया को, ये हम नहीं कहते हैं कि भाई क्योंकि इत्तेफाक है जो कुछ भी है। दे प्लेड बेटर क्रिकेट, दे वन द मैच। उसके बाद ये वेस्ट इंडीज़ का मैच हुआ। वेस्ट इंडीज़ का मैच होने के बाद वो मैच हारे। तो जब तक हमारे 2 मैच नेगेटिव हो गए, नहीं हार गए थे ऑस्ट्रेलिया से और वेस्ट इंडीज से। तो नेक्स्ट मैच जो था टॉनब्रिज वेल्स में जिम्बाब्वे से था। टॉनब्रिज वेल्स जो है एक ओवरग्रोन विलेज है, कोई सिटी के जैसा नहीं बोल सकते जी। और इट इज़ नोन मोर फॉर इट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके। और मशहूर इसलिए है कि कॉलिन कॉर्डर ने वहाँ अपनी स्कूलिंग की थी। ओके। तो जब कभी भी टॉनब्रिज वेल्स का नाम आता है तो कॉलिन का नाम आ जाता है। तो हम गए वहाँ खेल, तो पता नहीं शुरू में ऐसा हुआ कि हमारे बैट्समैन टिके नहीं, बहुत ज़रा मूव हो रही थी, ग्रीन विकेट थी। तो देखे तो we were 17 for 5। ओके। तो 17 for 5 पे आने के बाद बड़ा हुआ तो थोड़ा ये यशपाल और कपिल ने कुछ किया, यशपाल आउट हो गए तो 89 for 6 हो गए। ओके। तो बड़ा एक किस्म का ड्रेसिंग रूम में बहुत डीमोरलाइजिंग हो गया था सभी के लिए। जी। और लंच टाइम में जब ब्रेक हुआ और कपिल नॉट आउट था तो लंच में भी किसी ने किसी से बात नहीं की। तो कपिल ने बड़े उससे कहा कि भाई अभी तो काफ़ी ओवर्स और हैं, चलो देखते हैं, लेट्स फाइट इट आउट। उसके बाद जो है पहले रॉजर बेनी, बाद में मदन लाल, फिर आखिर में सैयद किरमानी इन्होंने बड़ा काफ़ी स्टैंड दिया कपिल को एंड ही प्लेड दैट एपिक इनिंग्स ऑफ 175 और वो मैच जीते। तो वो मैच जीतने के बाद अब ये हुआ कि भाई वेस्ट इंडीज़ तो एक क्वालिफाई कर जाएगी ग्रुप में से जी, और ऑस्ट्रेलिया और हमारे में से कोई एक क्वालिफाई कर सकता है। तो वो मैच बहुत क्रूशियल था। ओके। उसके लिए जो है हम लोग वर्कआउट कर रहे थे। ये हिंदू के एक रिपोर्टर थे आर मोहन। ओके। और आर मोहन ही अकेले थे जो कि हमारे टीम के हर एक मैच में हर एक जगह आते थे। तो उस दिन शाम को मैं और मोहन बैठ के ये कुछ कैलकुलेट किए कि भाई अगर हम हारे तो कैसे हारें, अगर जीतें तो कैसे जीतें, या उनको कितने रन दें या हम कितने रन बनाएं। वो अपना रन रेट की, क्योंकि उस ज़माने में कोई बताने वाला नहीं होता था कि आपका नेट रन रेट क्या होना चाहिए, लॉस का डिफरेंस क्या होना चाहिए, जीत का डिफरेंस क्या होना चाहिए, वो खुद ही कैलकुलेट करना पड़ता था। खुद ही करते थे क्योंकि हमारा इंटरेस्ट था उसमें। जी।
और वो करने के बाद जो है फिर मैं पूरी टीम को कन्वे करता था जी जो कुछ भी। जी तो वो कैलकुलेशन अभी ये हुआ कि भाई बेस्ट चीज़ होगी अगर हम उनको हरा दें। ओके अगर हम ऑस्ट्रेलिया का मैच जीते हैं तो ऑटोमेटिकली हम सेमीफाइनल्स में चले जाएंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट डे टीम जब 11 बन जाने थी तो कपिल ने कहा कि ये ऑस्ट्रेलियन टीम में लेफ्ट हैंडर्स ज़्यादा है। ओके तो लेफ्ट हैंडर्स वो पुरानी कहावत है कि भाई लेफ्ट हैंडर्स जो है ऑफ ऑप्शनर्स को स्पिनर्स नहीं खेल पाते हैं जी, तो इसलिए उसमें रवि शास्त्री को बिठा के कीर्ति आजाद को include खिलाया किया गया। ओके और जब ग्राउंड पहुंचे तो वहाँ पे ये मालूम हुआ कि उनका जो कैप्टन था किम ह्यूज नहीं खेल रहा। ओके फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे मन में कम से कम बड़ी खुशी हुई कि भाई वो नहीं खेल रहा। ओके अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ गुड कैप्टन ही वाज अ ग्रेट बैट्समैन आल्सो। ओके तो फर्स्ट मैच में जो हम हारे थे उसमें उसने काफ़ी रन्स बनाए थे और डेविड हुक्स को उन्होंने नया कैप्टन बनाया, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। और वो मैच जो है ज़रा ज़्यादा एफर्ट करके सब कुछ करके खेले और वो मैच जीते। जीते मैच जीतने के बाद अब ये होगा कि हम सेमीफाइनल्स खेलेंगे और दूसरे सेमीफाइनल्स में वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को हराया। जी तो हमारा जब इंग्लैंड से था मैच सेमीफाइनल जी तो उसके लिए बहुत ही ज़रा टेंशन कह सकता हूँ मैं थोड़ा सा कि भाई जब यहाँ तक आए हैं तो आगे क्यों नहीं क्यों नहीं जा सकते। तो उसमें वो स्पिरिट से खेले सब कुछ करे।